Okay. So yesterday I tried to glance you through our procedure of material movement right from GRN to the finished product department. That is finished product warehouse, which is called as BSR. Okay. So there actually what I was trying to tell you that the purchase order of various type of material is taken out by the purchase department, and purchase department works up with the help of a report called as the PPC, Production Planning and Control. Okay. So there are different kinds of purchase orders taken out. Yesterday I tried, but I could see only the raw material purchase order. So there are different kinds of purchase orders like plant and machinery purchase order, imported raw material, imported plant and machinery, job work, etc. So based on that, their GRNs are made, and after GRN is made, then we make one purchase voucher. That is actually financial accounting kind of a thing. So that's why I did not involve that matter yesterday, because I was only trying to explain you the material movement within the factory yesterday. So today what I will do is, today I will give you little bit insight about the FA, financial accounting. And tomorrow then, if possible, I will glance you through all the documents of ERP for yesterday's session as well as today's session. Is that okay? Yeah. So in FA, covering FA is not possible in one day, but to some extent I will try and complete it. So I will tell you about the data entry in FA. Is my voice clear to you? Okay. So see, when I talk about financial accounting, there are 5 types of entries, which are called as CP. The full form is cash payment. Then CR, which is cash receipt. Then BP, that is bank payment. BR is a bank receipt. And JV is journal voucher. These are the 5 types of basic entries which are done manually. Manually in the sense, if we make an invoice in some customer's name, तो उसका एफए का फाइनेंशियल अकाउंट का इफेक्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली चला जाता है. दैट आई विल एक्सप्लेन. अगर हम कोई रॉ मटेरियल परचेस करता है जिसका जीआरएन बनता है, और जीआरएन बनने के अगेंस्ट हम लोग जो परचेस वाउचर बनाते हैं, तो उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इफेक्ट अपने आप चला जाता है. ठीक है. तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, लाइक हम किसी का सर्विस मेमो बनाते हैं, किसी के नाम पे हमने सर्विसिंग दिया उसको, तो सर्विस मेमो का जब भी एंट्री होके वो सेव होता है, तो उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इफेक्ट अपने आप हो जाता है. So most of the documents, yeah, most of the major entries in financial accounting that are linked with some or the other documentation which we save, like invoice, GRN, purchase voucher, सेल्स इनवॉइस, सर्विस मेमोस एक्सेट्रा. तो उसके इफेक्ट जो भी है टैक्सेशन के, जीएसटी के, सेल अकाउंट, परचेस अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट अपने आप अपडेट होते रहते हैं. लेकिन ऐसे कुछ अकाउंट्स है जिसकी एंट्री हमें हाथ से करनी. फॉर एग्जाम्पल, एमआर सॉफ्टवेयर ने नितिराज इंजीनियर्स को 5,000 रुपीज दिया कैश, तो मैं उसका एंट्री जो रहेगा वो कैश रिसिप्ट में करूंगा. सीआर का नाम का एक डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, उसको ओपन करूंगा. उसमें एमआर सॉफ्टवेयर नाम का अकाउंट मेरे पास है ऑलरेडी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में. उसको क्रेडिट साइड लेके 5,000 डालूंगा. ओके. और सेव कर दूंगा. 5,000 रुपीज एमआर सॉफ्टवेयर को क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपसे 5,000 रुपीज आया मेरे को, और मेरे पेटी कैश अकाउंट में अपने आप डेबिट हो जाएगा. See, financial accounting is nothing but any entry which is going to be saved. Okay. तो वो अगर मैं क्रेडिट में सेव कर रहा हूं तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट डेबिट में किसी अकाउंट में सेव होगी ही होगी. या मैं डेबिट में एंट्री कर रहा हूं तो उतनी सेम अमाउंट किसी और अकाउंट में क्रेडिट होगी ही होगी. इसका मतलब हर एंट्री के 2 इफेक्ट है, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड. तो जब भी आप क्रेडिट साइड की टोटल और डेबिट साइड की टोटल करोगे तो मैच ही रहेगी. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ टीबी टैलिड, ट्रायल बैलेंस टैलिड.
है ना, तो हर चीज की डबल एंट्री होके ही वो सेव होता है. दैट इज द बेसिक. आई डू नॉट नो हाउ मच यू नो अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आई डू नॉट नो वेदर यू हैव मेड एनी पैकेजेस ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, and you are not a student of accounts, so as I am, so I'm just trying to explain you as an engineer so you can understand it faster, I believe. Okay, so as I was telling you, CP मैंने कैश पेमेंट किया किसी को, तो किसी को कैश पेमेंट किया, वो किसी का अकाउंट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में होना चाहिए, या तो मैं क्रिएट करूंगा और उसको कैश सीपी के अगेंस्ट एंट्री करूंगा. सीपी इज द नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट, टाइप ऑफ अ डॉक्यूमेंट. तो उसका इफेक्ट मेरे पेटी कैश अकाउंट पे होगा. पेटी कैश अकाउंट मतलब एक कैश वाला बंदा बैठा है, उसके पास एक बॉक्स है, कैश बॉक्स ऑफ द कंपनी, वो उसमें से पैसा देता है. इसके लिए वो कैश बॉक्स को क्रेडिट होगा और जिसको दिया उसको डेबिट होगा. हाँ, ठीक ठीक, मैं बोलता हूँ. हाँ, ओके. Now BP and BR is simple. It is other than cash, it is bank. बराबर है. अगर मैं आपको बैंक के थ्रू पेमेंट करता हूं, तो मैं वन ऑफ द बैंक सिलेक्ट करूंगा. If I have got account in many banks, one of the bank accounts I will select. 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज मैं बैंक को क्रेडिट करूंगा और 5,000 रुपीज में एमआर सॉफ्टवेयर को डेबिट करूंगा. तो ये किसके अगेंस्ट है पेमेंट? आपका बिल है उसके अगेंस्ट है, या मैंने आपको सर्विस दिया उसका, वो सवाल नहीं है. मैंने आपको पैसा दिया, उसको कहीं भी लिंक नहीं है. बैंक के थ्रू दिया तो बैंक को क्रेडिट हो जाएगा, आपको दिया इसके लिए आपको डेबिट हो जाएगा, खत्म. आपने मेरे को बैंक के थ्रू पेमेंट दिया, एमआर सॉफ्टवेयर ने, नितिराज जी ने उसको 5,000 रुपीज बैंक के थ्रू ट्रांसफर किया. तो मैं जिस बैंक अकाउंट में मेरे को पैसा आया है आपके थ्रू, वो बैंक में मैं डेबिट करूंगा और आपको क्रेडिट करूंगा. दैट इज BR, बैंक रिसिप्ट. So CP, CR, BP, BR are the four types of basic data entries where the money movement has taken place. Through that money movement has taken place. Okay. और उसके बाद में जेवी इज कॉल्ड एज अ जर्नल वॉचर. जर्नल वॉचर ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारे लेजर है, लेजर अकाउंट बहुत है मेरे लेजर में. देयर टू मेनी टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट्स. मुझे किसी भी एक अकाउंट को क्रेडिट करना है और किसी दूसरे अकाउंट को डेबिट करना है. वो उसमें मैं ना किसी से कैश दे रहा हूं, ना किसी को कैश दे रहा हूं, ना मैं किसी को बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा हूं, ना किसी के बैंक के थ्रू मुझे पेमेंट आ रहा है. लेकिन ये समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, कि आपने मुझे 5,000 रुपीज दिया था, लेकिन मैंने डेटा एंट्री करते टाइम 7,000 रुपीज टाइप कर दिया. किसमें? CR में, कैश रिसिप्ट. मेरे लिए कैश रिसिप्ट है, बराबर. तो मैंने एमआर सॉफ्टवेयर को 7,000 रुपीज क्रेडिट किया CR में, और मेरे पेटी कैश को 7,000 रुपीज अपने आप डेबिट हो गया, बराबर है. बाद में मुझे पता चला कि यार 7,000 नहीं, इसने तो 5,000 नहीं दिया, मैंने 7,000 गलती से डाल दिया है. तो मुझे 2,000 आपको डेबिट करना पड़ेगा और 2,000 पेटी कैश को फिर से क्रेडिट होगा. ये मैं जेवी से करूंगा, क्योंकि मैं आपको 2,000 कैश एक्चुअल में तो दे नहीं रहा हूं. अगर देता हूं तो मैं सीपी से करूंगा. तो मैं जेबी से करूंगा और उसमें नरेशन में ये लिखूंगा, बाय मिस्टेक मेरा एंट्री जो सीआर का था, एंट्री नंबर सो एंड सो, बाय मिस्टेक इट वाज टाइप 7,000, एक्चुअली इट इज 5,000. दैट इज व्हाई 2,000 का मैं जेबी पास कर रहा हूं, आपको डेबिट कर रहा हूं और पेटी कैश को क्रेडिट कर रहा हूं, जस्ट टू compensate my mistake. That is the JV. Okay. So these are the five types of basic data entries: CP, CR, BP, BR, and JV. What contra is? Contra is JV only. Contra is kind of a JVC. Contra is nothing but you're crediting one account and debiting one account.
That is what you mean by contra, right? So that we are talking a general voucher. That's what. नहीं नहीं नहीं, जो कैश और बैंक का है उसके लिए एक टिपिकल वर्ड्स है, सीपी, सीआर, बीपी, बीआर। मतलब मैंने अगर बीपी वाला स्क्रीन खोला, बीपी वाला ट्रांजैक्शन के लिए, बराबर है, तो वो बैंक पूछेगा और अमाउंट पूछेगा और किस पार्टी को मैंने पेमेंट किया है उस पार्टी का नाम पूछेगा, मेनली सप्लायर्स, बिकॉज आई एम मेकिंग माई पेमेंट टू द सप्लायर्स। वो मैंने नाम डाल दिया, मतलब मुझे फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक चुनना है, मतलब डालना है, 10,000 रुपए डालना है और एमआर सॉफ्टवेयर चुनना है और सेव कर देना है एंट्री को, और कुछ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो वो सीआर में चला जाएगा। कैश रिसिट में, कैश रिसिट में क्या है कि मैं उस बैंक को, करेक्ट, एग्जैक्टली, ओके, यस यस, करेक्ट, यू आर राइट। So now I move slightly ahead. I am changing the topic little bit over here. I am going to the slight beginning of HR. Yeah, somewhere it is related. That's why. Okay. Now what happens is in HR, you create an employee. जब भी आप employee create करेंगे तो उसका KYC सब रहेगा, वो employee का नाम, पता, क्वालिफिकेशन, previous experience, this that सब रहेगा, ठीक है, उसका PF नंबर, previous employer का वो सब है। लेकिन जब भी कोई आप एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं ईआरपी में, तो इट विल गेट सम कोड नंबर, एम्प्लॉय विल हैव सम कोड नंबर। और जैसे उसको आप क्रिएट करते हैं तो उसके फॉलोइंग अकाउंट्स अपने आप क्रिएट हो जाते हैं एफए के अंदर। फॉर एग्जाम्पल राजेश बतवाल नाम का एम्प्लॉय मैंने अभी क्रिएट किया, तो राजेश बतवाल करंट अकाउंट एक क्रिएट हो जाएगा, दैट इज बेसिकली अ सैलरी अकाउंट। करंट अकाउंट मेंट सैलरी अकाउंट। देन राजेश बतवाल बोनस अकाउंट, राजेश बतवाल ग्रेचुइटी अकाउंट, राजेश बतवाल एक्स ग्रेशिया अकाउंट एंड राजेश बतवाल लोन अकाउंट। लोन अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, समझ लीजिए, ओके। ओनली राजेश बतवाल का बोनस अकाउंट, मतलब सॉरी, करंट अकाउंट, बोनस अकाउंट, ग्रेचुइटी अकाउंट और एक्स ग्रेशिया अकाउंट, ये चार अकाउंट अपने आप राजेश बतवाल, ये अकाउंट मतलब एम्प्लॉय क्रिएट हुए बराबर एफए में क्रिएट हो जाते हैं। नाउ ये जो भी अकाउंट क्रिएट होंगे उनके कोड अलग अलग रहेंगे, बिकॉज एवरी फाइनेंशियल अकाउंट हैज इट्स ओन डिफरेंट कोड, बट द ईआरपी विल रिमेंबर दैट राजेश बतवाल का XYZ कोड है, वो कोड के साथ ये चार अकाउंट एसोसिएटेड है। मतलब कि मुझे जब भी राजेश बतवाल की टोटल बैलेंस निकालनी है प्लस माइनस, क्योंकि चारों अकाउंट में क्रेडिट डेबिट कुछ भी बैलेंस रह सकती है, तो जब भी मुझे राजेश बतवाल का नेट बैलेंस निकालना है तो मुझे वो चारों अकाउंट के क्रेडिट डेबिट वो अपने आप दिखाएगा और नेट बैलेंस दिखा देगा, क्योंकि राजेश बतवाल ये एम्प्लॉय के साथ ये चार अकाउंट एसोसिएटेड है। गॉट इट, ओके। इसके बाद में ऐसा है इसमें सॉरी आई एम सो ओके। इसके बाद में ऐसा है कि अगर कभी जब भी मुझे चाहिए होगा तो राजेश बतवाल का लोन अकाउंट में क्रिएट कर सकता हूं, यानी वहां कहीं पर एक टिक दिया हुआ है कि राजेश बतवाल नाम का एम्प्लॉय को मैं ओपन करूंगा, या जो भी एक पर्टिकुलर विजार्ड है उसमें अगर मैं लोन अकाउंट को टिक किया तो राजेश बतवाल का लोन अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा एंड इट विल ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद द राजेश बतवाल कोड। सिमिलरली राजेश बतवाल का इंसेंटिव अकाउंट और दिवाली इंसेंटिव अकाउंट, ये मतलब बेसिकली थ्री अकाउंट्स विल बी क्रिएटेड एज एंड व्हेन आई वांट। यस, आई विल शो यू ऑल द स्क्रीन वॉक थ्रूज। अभी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए या समझने की कोशिश कीजिए, दोनों भी कर सकते हैं।
करेक्ट। तो व्हेन एम्प्लॉय इज जनरेटेड और क्रिएटेड, उसका करंट अकाउंट, बोनस अकाउंट, ग्रेच्युटी अकाउंट, एक्स ग्रेशिया अकाउंट, these four accounts are created automatically. Then उसका लोन अकाउंट, दिवाली इंसेंटिव अकाउंट, रेगुलर इंसेंटिव अकाउंट एंड पेटी कैश अकाउंट, these four accounts are created on a choice. Four are created automatically, four are created on choice, but whenever they are created on choice, they are always linked with that employee code. Okay. Now I'll explain everything here. फर्स्ट थिंग इज व्हेन एम्प्लॉय इज क्रिएटेड, उसका एक अकाउंट तो क्रिएट होना ही पड़ेगा, सैलरी का अकाउंट, बराबर है, ताकि उसका जब भी अटेंडेंस डले तो उसकी सैलरी उसके उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, ठीक है, इसके लिए वो मस्ट है। दूसरा मैंने कहा बोनस अकाउंट। तो बोनस अकाउंट में सिस्टम ये है हमारे यहाँ पर कि जैसा ही, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी बोला था कि हमारा एचआर का जो पैकेज है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। एक एचआर कॉम्प्लेक्स है, एक पीपीसी कॉम्प्लेक्स है, और और एक तीसरा कुछ तो भी मैंने बोला था, एनीवे मैं याद कर लूंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि वेन एवर सैलरी इज प्रोसेस्ड आफ्टर पुटिंग इन द अटेंडेंस, वो टाइम पे वो एम्प्लॉय का बोनस जो ईयरली हम देते हैं एज पर द बोनस पॉलिसी, वो सब आगे एचआर के डिटेल में आएगा। अभी मैं एफए के जितना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके अंदर उसका जो भी बोनस है वो एवरी मंथ उस बोनस एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट हो जाता है, और एम्प्लॉय के इंडिविजुअल इंडिविजुअल बोनस अकाउंट को क्रेडिट हो जाता है। We don't give this bonus to the employee every month along with the salary. Bonus is given once in a year, that is by September end for the previous financial year. Correct? बट वो देते टाइम हम क्या करते हैं, बोनस अकाउंट खाली उसका एक रिपोर्ट लगा लेते, तो हर एम्प्लॉय का बोनस अकाउंट कितना जमा है वो दिख जाता है। तो ये, लेकिन एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो एम्प्लॉय का बोनस का खर्चा वो महीने का हुआ है, भले ही आप साल भर बाद दे रहे हो। इसके लिए एक्सपेंसेस में उसका प्रोविजन उसी मंथ में होना चाहिए। एग्जैक्टली प्रोविजन कर ले तो मतलब इंसेंटिव एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट हो जाता है, और वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बोनस अकाउंट को क्रेडिट हो जाता है। आपका अकाउंटिंग खत्म हो गया, आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे उतने का खर्चा गिर गया, खत्म किस्सा। क्लियर? उसी तरह ग्रेच्युटी का किस्सा है, इसीलिए ग्रेच्युटी अकाउंट अपने आप बन जाता है। ओके, ग्रेच्युटी इज बीन गिवन एज पर ग्रेच्युटी पॉलिसी, नॉट फ्रॉम डे वन, only when employee completes some 4 years 8 months or some whatever is the policy। और बोनस का भी अमाउंट कितना दिया जाना है वो बोनस पॉलिसी के हिसाब से है। ओके, या या गो अहेड। See, first thing is gratuity is never paid yearly or 4 monthly or 6 monthly. Gratuity is paid only when the employee leaves the job. It is what the gratuity is applicable in today's scenario is only after the employee's employment completes 4 years 8 months or 4 years 9 months. उसके बाद में वो ग्रेच्युटी के लिए लायबल होता है, मीन्स ही इज व्हाट यू से एलिजिबल, या ठीक है। तो अगर 1 साल के बाद होने वाला होगा तो वो वही मैं बोल रहा हूँ, ग्रेच्युटी पॉलिसी विल बी अगेन अ डॉक्यूमेंट विच विल हैव टू की इन एंड गिव सर्टेन इनपुट्स विच विल लिंक ओवर हियर। सेम में बोनस इज ऑल्सो पॉलिसी डॉक्यूमेंट अलग रहेगा, हम कितना बोनस देने वाले हैं वो हिसाब से मंथली वो काटेगा। ओके, देन द लास्ट
तो उसके लिए फाइनल नाम का एक रिपोर्ट होता है। राजेश गोतवाल आज जॉब छोड़ रहा है तो उसका फुल एंड फाइनल रन करो, तो उसका बोनस अकाउंट, ग्रेच्युटी अकाउंट में अगर कुछ पैसा है तो ठीक है, बोनस अकाउंट, ग्रेच्युटी अकाउंट, करंट अकाउंट और एक्स ग्रेशिया, और उसके इंसेंटिव अगर कुछ पड़े अनपेड, जो इंसेंटिव अकाउंट्स आएंगे, वो सब मिला के और राजेश गोतवाल का पूरा लिखा चिट्ठा आ जाता है। ये अकाउंट में इतना क्रेडिट है, लोन अकाउंट में ऑलरेडी 10,000 रुपए डेबिट पड़ा हुआ है, फलाना, और ये फाइनल अमाउंट है जिससे आप फुल एंड फाइनल दे दो और किस्सा खत्म करो। इसीलिए ये सारे अकाउंट उस राजेश गोतवाल नाम के एम्प्लॉय से जुड़े होते हैं। ठीक है। देन एक्स ग्रेशिया, मैंने एक अकाउंट बताया था। एक्स ग्रेशिया इज नथिंग but some additional bonus if I want to give to some employees. Normally in our company, what we do, we give 8.33% bonus every year, and we give about 5% extra bonus for the employees who have completed maybe 10 years in the organization. So it is something like bonus only, but additional part to bonus, we are also giving ex gratia. अभी ये रूल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलने गया तो बोनस 8.33% कम से कम मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट का रूल है, विच एम्प्लॉयर हैज टू फॉलो। एक्स ग्रेशिया जो है ये अबोव द बोनस है, किसको देना है, कितना देना है, ये एम्प्लॉयर का चॉइस है। समझ गए आप, इसके लिए एक्स ग्रेशिया है। तो ये सारे अकाउंट आ जाते हैं। अब ऐसा है कि जो 4 अकाउंट मैंने कहा कि हम चॉइस के ऊपर खोलेंगे, मतलब चॉइस के ऊपर अगर खोलना है तो उसके अंदर पेटी कैश अकाउंट। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारी मार्केटिंग की टीम है जिसमें हमारे रीजनल मैनेजर्स है, जोनल मैनेजर्स है, एरिया सेल्स मैनेजर्स है, these people are on the move. They are not sitting in one office and working like head office है, they are always on the move, touring पे रहते हैं वो लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि वी ओपन अ पेटी कैश अकाउंट से, फॉर एग्जांपल शांतनु धानुका इज अ सेल्स मैनेजर, ओके, तो हम शांतनु धानुका क्रिएटेड है और उसके 4 बाय डिफॉल्ट अकाउंट भी क्रिएट हो गए, बोनस, करंट अकाउंट मीन सैलरी अकाउंट, ग्रेच्युटी अकाउंट और एक्स ग्रेशिया अकाउंट। अब शांतनु धानुका ये सेल्स में बंदा काम करता है, तो मैंने वहां जाके पेटी कैश अकाउंट को टिक कर दिया, तो शांतनु धानुका का पेटी कैश अकाउंट भी ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि आपको मैंने फिर वो एक अलग चीज है कि मैंने एक चार्ट अलग से बना रखा है मैन्युअली, कि शांतनु धानुका के पास एट एनी गिवन मिनिमम 10,000 रुपीज होना चाहिए और मैक्सिमम 25,000 रुपये होना चाहिए कंपनी का, ताकि वो रोज रोज पैसे की वजह से उसका काम नहीं अटके, कहीं ट्रेन पकड़नी है, कहीं फ्लाइट पकड़नी है, जो भी कुछ करना है उसको। तो मैंने 10,000 रुपीज पेटी कैश में, मतलब शांतनु के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए है, और 10,000 रुपीज शांतनु के पेटी कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। दिस एंट्री विल बी डन बाय बीपी। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। बैंक पेमेंट के थ्रू मैंने आपको 10,000 भेजा है, और मैंने डेबिट किसको करना है वो मेरे हाथ में है। तो शांतनु धानु का पेटी कैश अकाउंट नाम के अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। फिर उसके अभी हमारे अलग अलग नॉर्म्स है कि एवरी 15 days यू हैव टू सेंड अ फॉर्मेट ऑफ योर एक्सपेंडिचर व्हाट एवर यू हैव डन इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। समझो आपने खर्चा भेज दिया, आपका 12,000 रुपए का खर्चा हो गया, ठीक है, तो यहाँ का डेटा एंट्री ऑपरेटर उसको स्क्रूटिनाइज करेगा कि आपका खर्चा बराबर है, आपने कहीं ज्यादा खर्चा तो नहीं लिखा है, जो भी है, और फिर वो डेटा एंट्री करेगा जिसपे एक्सपेंसेस अकाउंट्स को डेबिट होते चलेंगे, जैसे टीएडीए है, लॉजिंग है, ट्रैवलिंग है, बस टिकट है, वो सारे अकाउंट को डेबिट होगा, और शांतनु के पेटी कैश अकाउंट को क्रेडिट होते जाएगा। तो शांतनु का पेटी कैश अकाउंट जिसमें 10,000 रुपया इनिशियली डेबिट था, वो कम कम होके आ जाएगा। तो फिर मुझे और आगे के पैसे जब भी भेजने होंगे, मैं भेज दूंगा एज पर माय पॉलिसी अगेन, and your petty cash. So basically, whenever you are leaving the organization or any employee in the marketing or sales leaving the organization, वो टाइम सभी अकाउंट की तरह उसके पेटी कैश अकाउंट में कितना डेबिट बैलेंस है वो भी मेरे को ईआरपी दिखा देगा, क्योंकि वो पैसे का हिसाब आना बाकी है या तो पैसा उसके पास है, वॉट एवर। गॉट इट। तो ये जो पेटी कैश अकाउंट है, ये हम उन्हीं लोगों का खोलते हैं जो लोग मार्केटिंग में, सेल्स में है, इसीलिए इसको हम टिक करते हैं। अभी मान लीजिए कि मेरे पास में आरएनडी में कोई बंदा ज्वाइन हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में,
उसको आप पेटी कैश अकाउंट खोल के मतलब ही नहीं है. तो आई डोंट वांट टू ओपन पेटी कैश अकाउंट फॉर एवरी एम्प्लॉय एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ अकाउंट्स इन माय लेजर. इसके लिए पेटी कैश अकाउंट में कोई सिलेक्टिव एम्प्लॉय का खोलूंगा. इसके लिए वो ऑन सिलेक्शन ऑन डिमांड है. ओके. देन अगेन कम्स इंसेंटिव अकाउंट. उसमें दो टाइप के इंसेंटिव है. एक इंसेंटिव रेगुलर अकाउंट और एक इंसेंटिव दिवाली अकाउंट, दिवाली इंसेंटिव अकाउंट. तो इंसेंटिव के बारे में इफ यू रिमेंबर आई हैड आल्सो गिवन यू सम हिंट्स कि भाई वी शुड हैव सम काइंड ऑफ इंसेंटिव्स टू द सेल्स टीम. तो अगर मुझे इंसेंटिव देना है किसी को तो मैं उसका इंसेंटिव अकाउंट ओपन कर लूंगा. फिर उसके अंदर आइदर आइदर इफ देयर आर सम रूल्स पुट अप then ERP will automatically credit the incentive on certain instance, or a data entry operator will calculate his monthly performance and put the incentive entry by hand. Okay? अगर नहीं लगाया तो हैंड से होगा, लगाया तो वो पर्टिकुलर इंसिडेंस पे अपने आप होता चलेगा. तो इसके लिए और एक दिवाली इंसेंटिव अकाउंट, इसके लिए हम वो भी ऑन डिमांड खोलते हैं. बिकॉज हमारे बिजनेस में दिवाली पीरियड विच स्टार्ट फ्रॉम 1st of August, इट्स गोइंग टू स्टार्ट इन अ फ्यू डेज नाउ, टू December end, we are very much loaded. That's our peak business period. तो उसका इंसेंटिव स्कीम हमारा अलग ही निकलता है 5 months का. तो वो सारा इंसेंटिव जो जो कंप्लीट करते हैं टारगेट्स या जो भी गोल्स है, तो हम जनवरी में उसकी एंट्री हाथ से डालते हैं. ठीक है. तो वो दिवाली इंसेंटिव अलग दिखता है हमको और रेगुलर इंसेंटिव अलग दिखता है. उसको बाइफरकेट करने के लिए दो अलग अकाउंट्स है. और हम जब चाहे तो वो अकाउंट उसका ओपन कर सकते हैं, एम्प्लॉय का मतलब चालू कर सकते हैं. ऑल क्लियर? देन लास्ट इज, या, there could be both, there could be one, there could be none. I will explain you. Diwali target is given August to December, 5 months. Those incentives are calculated only after the Diwali period is over. But I may offer some people the monthly target also along with the Diwali target. So I may calculate those incentives regularly on monthly basis and put the entry by hand in the regular incentive account. No, no. Now there are some auto calculation incentive also, which I told you some time back. For certain hierarchies, there are auto incentive calculations. So those incentives fall into this incentive account automatically. And it is not at all complicated. Once I go to that level, I'll explain you. So you will understand the ERP and the manual entry or the ERP automation is all very well linked and happens correctly. Nothing great. Okay. Then I go to loan account, the last one, the 8th one, loan account. लोन अकाउंट में ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने लोन के लिए अप्लाई किया कि सर फलाना प्रॉब्लम है, मुझे 25,000 रुपीज लोन दीजिए, मैं 5,000 रुपीज पर मंथ रिपे करूंगा. तो उसके लोन अकाउंट को जाके फिर वहां पर हम उसको लोन अकाउंट एक्टिवेट करते हैं. और वहां पे वो ये डाल देते हैं कि 25,000 रुपीज जब हम उसको पे करेंगे तो वो लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे एम्प्लॉय के. और उसी में डाल देते हैं मंथली डिडक्शन कितना करना है, 5,000 उधर उधर ही डाल देते हैं. तो जब उसका सैलरी प्रोसेस होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज द एम्प्लॉय हैज गॉट 30,000 सैलरी, तो उसके सैलरी अकाउंट में 30,000 पहले तो क्रेडिट हो जाता है, बराबर है. फिर 5,000 रुपीज उसके सैलरी अकाउंट में डेबिट हो जाता है और ऑटोमेटिकली उसके लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि उसके लोन अकाउंट में 25,000 रुपीज आपने डेबिट डाल रखा है जब उसको पेमेंट किया है. ओके. ओके. तो 5,000 रुपीज को क्रेडिट हो जाता है. यानी अगर आप लोन अकाउंट का बैलेंस देखोगे तो 20,000 डेबिट दिखेगा और 5 महीने के बाद वो नील हो जाएगा. ये सारी एंट्री ऑटोमेटिकली सैलरी प्रोसेस करते टाइम होती है, किसी को कुछ भी हाथ से डालना नहीं होता है. ओके. और इसीलिए हमने इतने अलग अलग लेजर अकाउंट बना रखे हैं ताकि एवरी एंट्री गोज बाय इट्स ओन.
Okay. Okay. So this is what today I would like to explain you about the employees accounts. Right. इसमें और डिटेल में जो ऑटो उसको क्रेडिट डेबिट इंसेंटिव होते हैं वो कैसे होते हैं वो जब इंसेंटिव रूल्स पे मैं जाऊंगा Hmm. वो टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा. Right. Okay. So today's chapter covers financial accounting as CP, CR, BP, BR, JV. When the employee is created, his four accounts are by default created. Other four can be created as and when required, but all the accounts are linked with his salary, with his name. Okay. All right. So, I'm just no. I'm just explaining you the what do you say, employees accounts. Okay. Now, I would be covering tomorrow the financial accounting accounts, ledger accounts, how they are created. Type of account. See, because anything which you like, say, what you saw in our inventory item में subgroups है. Everything is categorized. मतलब वैसे फाइनेंशियल अकाउंट के जितने लेजर अकाउंट है उनके अलग अलग ग्रुप्स है, ग्रुपिंग्स है. So when I create an account, I have to put that account in one of the groups. एंड बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो भी अकाउंट बनता है, चलो मैं उसके ऊपर थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं. जो भी अकाउंट बनता है वो आइदर बैलेंस शीट अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. डू यू नो दिस शांतनु और आई एक्सप्लेन? Balance sheet account and profit and loss account. Have you heard about this terminology or the meaning of it? Yes, the accounts which are affecting profit or loss. For example, raw material purchase account, sales account, चाय का खर्चा, ऑटो रिक्शा खर्चा, होटल का खर्चा, टेलीफोन खर्चा, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हो गए. ठीक है. बैंक अकाउंट, एम्प्लॉइज अकाउंट्स, ये सब सप्लायर अकाउंट्स, ये सब बैलेंस शीट अकाउंट्स है. एम्प्लॉय का अकाउंट भी बैलेंस शीट अकाउंट ही है, क्योंकि सैलरी अकाउंट पे हम डेबिट करते हैं, खर्चे में जाता है, दैट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और इधर एम्प्लॉय को क्रेडिट होता है, एम्प्लॉय का जो करंट अकाउंट है दैट इज द बैलेंस शीट अकाउंट, उससे प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट नहीं होता है. सो वेन एवर एनी न्यू अकाउंट इन लेजर यू आर ओपनिंग, first thing is you have to confirm, you have to give that whether it's a profit and loss account or a balance sheet account. And then you have to select the various groups कि this account will fall into which group. Okay. So मेरे ख्याल से हम ऐसा करेंगे, our next meeting we will do all the previous material movement screens in ERP, in present ERP, right from GRN to the finished product. And also we'll cover tomorrow the financial accounting ke screens ki how the CP, CR, BP, BR and JVs are passed, and how the financial accounting accounts are created. Also, I will display you our employees' various accounts, how they work. All right. So now we can probably speed up. एक लेवल आने के बाद में फिर परचेस है, ERP, सॉरी PPC है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. So today, what I have decided that I will not scan you through ERP directly, because I found it becomes more complicated, and it is something like by hatting the chapter without knowing the subject. So I'll first explain you the theory and then we'll go to solving the sums. All right. So we'll meet again tomorrow. Hopefully tomorrow will not be as late. Yeah, one more thing, Shantanu, वो मैंने आपको फाइल भेज दिया है आपका. Yeah, so yeah, no problem. Take your own time. Yeah. Yeah, तो वो कोड ही वैसा ही है. Yes, we confirmed. Okay.